Hey guys, see this is a question. One periodic signal xt is given. So this is okay from -1 to 2 it is one period, from 2 to 5 it is one period, second period. So sim period is there actually. Okay. So we have to find this the power of this signal xt. Okay, for finding the power, you know that power is 1/2 naught minus t to t x of t whole square dt. So first of all we have to find the xt. Okay, for xt what we have done, we have taken x minus x1 from the trigonometric formula, okay, of slope, that is x minus x1 upon y minus y1 equals to x2 minus x1 upon y2 minus y1, or we can see that y2 minus y1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon x minus x1, both are same. Okay, now see here from this to this we have taken this one as x1 and y1, and this is as x2 and y2. Okay, so y2 is what? Y2 is -3, and x2 is what? X2 is 1, and x1 is what? -1, and it is 3. Okay, so it is x is what? X is nothing but t, and y is nothing but xt. So x minus x1, x1 is 1 upon y is what? Xt minus y1 is 3, so 3 equals to x2 is 1 minus x1 is minus under root minus 1 upon y2 is what? -3 minus 3. Okay, on solving we get t minus into minus is plus, so t plus 1 upon xt minus 3, xt minus 3 equals to 1 plus 1 minus plus 1 plus 1 to minus 3 that is -6. So 2 by 6 is nothing but 1 by 3 or we reverse it, xt minus 3 upon t plus 1 equals to -3. Okay, if you multiply this one by 3 minus 3, we get -3t minus 3 equals to xt plus 3, xt equals to -3. Okay, now xt minus 3 equals to -3t minus 3. Okay, we just put this side, it will be plus 3, so plus 3 and minus 3 will cancel out, so xt equals to -3t. The slope of basically this is -3t. Okay, now -3t whole square, we have put the value of xt. Now -3t into -3t in square into -3t is 3 to the 9 minus plus and t square. Okay, so we have put 9t square. Okay, it is plus actually 9t square dt from -1 to 1 we have taken. On solving we get 1 by 3 9t cube. Okay, because what we have done for x, and if we integrate this within x n plus 1 upon, and this is the roots. Okay, so for 9t square it is 9t square plus 1 upon 2. Okay, that means 9t cube upon 2. Okay, we'll get this one. Finally on solving we are getting 2 is what? Question is, it's periodic signal, so no need to find to create the all power. Okay, in continuous, only find one period, no need to find the whole, only find one period. Okay, पीरियड का निकालोगे एक्स से रन कर जाएगा. देखिए एक सवाल है हमारा, हाँ बहुत सिंपल था ये एक्चुअली में, ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है. Another question. Okay. Another question देखिए, एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग. ऑलरेडी हमें फाइंड करना है पावर. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें एक यूनिट स्टेप है, सॉरी इस तरह दिया हुआ ना, कुछ इस तरह आ रहा है, और यहाँ पे ए माइनस टी है, इसका ये दिया हुआ चिन्ह, तो ये ए है. ओके, इसके पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पावर इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2t माइनस टी टू टी एफ टी का होल स्क्वायर डी टी. एफ टी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो हमारा ये है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस टी से 0 ए स्क्वायर डी टी, और इसके लिए हो जाएगा ये लिमिट 1/2t टी टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम 0 टू टी ए माइनस टी है. अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीटर -2t dt. माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर, और लिमिट हमारा -t से 0 है, तो 0 माइनस dt इंटू 2t, ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2t हो जाएगा, है ना. ये बाहर आ जाएगा, -2t अपॉन 2 हो जाएगा. हम फाइंड करते हैं ना, इसका क्या होता है? एक्सपोनेंशियल -2t अपॉन 2 हो जाता है इसका.
इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि टी टेंस टू इन्फिनिटी होता है, टी पुट कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या देगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2t है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्सपोनेंशियल 2t की जगह टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और 2t से, ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये फाइनाइट है तो पावर फाइनाइट है, और यहाँ पे पावर 0 आ रहा है, पावर 0 आ रहा है मतलब एनर्जी सिग्नल है, तो पावर सिग्नल प्लस एनर्जी सिग्नल हमेशा होता है पावर, याद रखिएगा, ये पावर सिग्नल प्लस एनर्जी सिग्नल प्लस पावर। एक और चीज़ है, नोट्स लिख लीजिएगा कि जो रैंडम सिग्नल होता है, रैंडम सिग्नल जैसे कि नॉइस, इसमें पावर होता है, वो हमेशा पावर सिग्नल होता है, पावर सिग्नल। तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम करने में तो मजा है, ये तो आ रहा है सभी सामने में प्रॉब्लम पूछता है, और प्रॉब्लम अच्छे से करेगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है, एक्स टी दिया हुआ है, डेल ऑफ टी प्लस 1 माइनस डेल ऑफ माइनस 3, ओके, एक्स टी दिया हुआ था और इसमें वाई टी दिया हुआ है, माइनस इनफिनिटी एक्स ऑफ डेल टी इनफिनिटी, पूछा है कि इसका एनर्जी निकालना, और क्या सवाल है, बताइए प्रॉब्लम, इससे निकल गया है, ये वाटी का पूछा है ना, एक्स तो पहले हमको वाटी निकालना पड़ेगा, वाटी क्या होगा माइनस इनफिनिटी ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, दो बात है, ये दिख रहा है, और एक चीज़ हम जानते हैं कि यू एफ टी क्या होता है, यू एफ टी क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या करना, माइनस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी के जगह डेल ऑफ प्लस इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे अगर आप सबका क्या हो जाएगा माइनस इनफिनिटी डेल ऑफ प्लस माइनस माइनस इनफिनिटी डेल ऑफ माइनस इनफिनिटी, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऑफ टी हो जाएगा वो माइनस वैल्यू ऑफ माइनस ऐसे सिग्नल है, वैल्यू ऑफ टी प्लस 1 करना पड़ेगा, माइनस में शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है ना, तो अगर इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा माइनस 3, ठीक ना होगा, इसका एनर्जी सिग्नल क्या आ रहा है, बाकी क्या रहेगा -1 से 3, उसका एम्पलीट्यूड तो हमारा 1 है, इसका डी टी कुछ नथिंग है 3 माइनस 3 प्लस 1, और फाइनाइट फ्लेक्सिबल और फाइनाइट लेंथ, कुछ अच्छा था, अगर हम इस श्रेणी में हमारा वाई ऑफ टी अगर हम इसमें वाई ऑफ टी कर दे तो क्या हो जाएगा -1 ऑफ 3 हो जाएगा,
पावर में क्या होगा ये वाई टी क्या होगा दिस वन टू दिस वन टी दिस वन बाई 3 बाई फिर मतलब व्हाट इज दैट इज क्या हो जाएगा सी बाई वाई बाई 3 हो गया ठीक है ना करने के लिए मतलब स्केलिंग ऑफ सिग्नल करेंगे तो एनर्जी भी स्केल हो जाएगा मतलब अगर एक्स ऑफ टी को एनर्जी अगर E1 है तो अगर एक्स ऑफ अल्फा टी है इसका एनर्जी कितना होगा E1 बाई अल्फा होगा ठीक है। प्रॉब्लम है हम देखते हैं असल वन मोर प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज़ पता है बताना भूल गया कि हमने स्केलिंग तो देख लिया अगर एम्पलीट्यूड टाइप का अगर है तो सिग्नल है अगर वाई ऑफ टी का अगर एनर्जी ई ऑफ वाई टी होता है ठीक है ना अगर हम इसको एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन कराते हैं ए वाई ऑफ टी तो इसका जो होगा वो ए स्क्वायर ए वाई ऑफ टी हो जाएगा है ना एम्पलीफिकेशन स्केलिंग एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो करेंगे स्क्वायर जाएगा कांस्टेंट ये पता है कि ये जो करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा चलिए स्क्वायर माइनस टी से ठीक करते हैं इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना देखिए दूसरा प्रॉब्लम होता है। Hey guys, see this problem, very interesting problem it is, and you will find the equation first. Okay, I will going to help you, and you will also find, you will learn how to find the this. For this slope, it is actually we have calculated, but I will calculate. Slope equation पहले हम find करेंगे इसमें okay. For first finding this one and then again this one. चलिए देखते हैं एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ओके वाई क्या है हमारा वाई क्या है हमारा ये एक्स ऑफ टी है वाई वन क्या है हमारा ये वाई वन यहाँ 0 है एक्स क्या है हमारा टी है एक्स वन क्या है वाई टू दिस वन वाई टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ओके सो वाई टू क्या है हमारा 1 है वाई वन क्या है हमारा 0 है एक्स टू क्या है हमारा 0 माइनस एक्स वन क्या है हमारा माइनस so xt by t plus 1 equals to 1 by 1 इस तक पर ये होता है कि xt बराबर t plus 1 मतलब इसका t plus 1 है और इसका अगर फाइंड करना पड़ेगा तो इसका सिर्फ यहाँ से यहाँ आ रहा है देखिए y2 मान लेते हैं और x2 मान लेंगे ये x1 y1 फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 और y क्या है हमारा xt है माइनस y1 कितना है हमारा ठीक है y1 कितना है हमारा 1 एक्चुअली में x कितना है हमारा 3 है x1 कितना है हमारा ये x1 है 0 इक्वल्स टू y2 क्या है हमारा y2 0 है y1 कितना है हमारा y1 ये है हमारा y1 है हमारा 1 x2 ये है हमारा x2 कितना है 1 x1 कितना है 0 तो xt y1 डाउट है ना y1 माइनस 1 इक्वल्स टू
माइनस वन इंटू टी। ओके, नेक्स्ट टी क्या हो जाएगा, वन माइनस टी, ये हो जाएगा स्लोप वन माइनस टी। ओके, वन माइनस टी। ओके, देखिए हम एनर्जी से फाइंड करेंगे, इसका हमें एनर्जी से निकालना है। ओके, ये ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू, ये एक्स टी क्या हो जाएगा हमारा, पहले माइनस वन से लेकर जीरो, लिमिट लिमिट के साथ है, लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी है, ये भी हमारा लिमिट। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने माइनस दिया हुआ ना, माइनस से लेकर तो माइनस से हम जीरो लेंगे, लिमिट ये माइनस से जीरो जीरो 90 प्लस वन का होल स्क्वायर डी टी प्लस जीरो से वन ले लेंगे, एंड इट इज़ वन माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर है टी प्लस वन का टू बढ़कर थ्री का जाएगा, फॉर लिमिट माइनस वन टू जीरो, फिर आ जाएगा वन माइनस टी थ्री बाय सॉल्व करने के लिए टू बाई थ्री है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो बोलो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व यहाँ से माइनस वन प्लस वन जीरो है, ज़ीरो देंगे, ठीक है, ज़ीरो देंगे माइनस देखिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा इसका तोड़ देते हैं, ए प्लस बी क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री ओके। सिमिलरली उसका आप निकाल लीजिएगा ऐसे प्रॉब्लम करके, है ना, तो आ ही जाएगा, आप निकालिएगा ना, फिर उसको करिएगा तो टी क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करिएगा जीरो वन वैल्यू इस तरह करके मिल ही जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक नया चीज़, कुछ कंक्लूजन है जो हम रखने जा रहे हैं। डेल टी जो फंक्शन है हमारा, डेल टी दिस इज नादर एनर्जी सिग्नल नॉट पावर सिग्नल। डेल टी जो होता है हमारा नहीं है नादर, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड है हमारा, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड है, तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का क्या होगा, एनर्जी क्या होता है माइनस इंफिनिटी और ये एक्स ऑफ टी और इसका डी टी, लेकिन ये बहुत इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है हमारा, तो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा, एनर्जी तो इनफाइनाइट थोड़ी करेगा, लेकिन पावर भी हमारा इनफाइनाइट होगा, इसलिए इस पर हम फाइंड नहीं करते हैं। छोड़िए मान रहा है डिटेल ऑफ टी जो नजर, लेकिन डिटेल ऑफ एन जो है वो एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल बट सिग्नल
ओके, अगर हमें फाइंड करना रहेगा इस चीज़ का, देखिए तो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, और जिसका एम्पलीट्यूड है इसका टी है, तो इसका जो एनर्जी होगा वो ए स्क्वायर के बाई 3 हो जाएगा। ओके, हाफ साइकिल साइकिल का निकालना होगा, साइकिल का निकालना होगा, ए स्क्वायर जी बाई 2। ओके, और रेक्टेंगुलर हमारे को रेक्टेंगुलर अगर कोई दिया हुआ है लाइक दिस, इसका एम्पलीट्यूड ये है, टाइम टी है, तो एनर्जी से मिल जाएगा ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी बाई 3 एंड हियर ए स्क्वायर टी बाई 2। सो 3 2 फिर इज 1 है ना, तो वो याद रखिएगा। ओके, देखिए ये एक्चुअली में हमने ट्रायंगुलर का एनर्जी निकालने के लिए ये है, तो पावर हम जानते हैं, पावर इज नथिंग बट 1/2t इंटू ई ऑफ टी मेनली हो जाएगा, है ना, अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम करेंगे इसको तो 1/2t इंटू ए स्क्वायर टी बाई 3 है, तो टी टी कैंसिल आउट, दैट इज ए स्क्वायर 6 हो जाएगा मेनली, है ना, स्क्वायर 6, तो ये तो फाइनाइट आ रहा है मेनली। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका निकालना चाहे पावर तो हो जाएगा 1/2t इंटू ए स्क्वायर टी बाई 2, टी कैंसिल आउट, दैट इज ए स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका निकालना चाहे पावर इक्वल्स टू फाइनाइट आ रहा है, तो इसका अगर निकालेंगे तो 1/2t इंटू ए स्क्वायर टी ए टी स्क्वायर 2, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ए टी बाई 2 आ जाएगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट पावर आ जाएगा। समझा, इसका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, से इनफाइनाइट पावर है। सो ए स्क्वायर टी बाई 3 ए स्क्वायर टी बाई 2 एंड इधर ए टी स्क्वायर बाई। एक सवाल है कि अगर हम पावर सिग्नल को पावर सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, बताइए, पावर आएगा या एनर्जी आएगा, या फिर नाइदर एनर्जी नाइदर पावर। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए अगर हम लेते हैं यूनिट स्टेप लेते हैं स्टेप। ठीक है, ये हमारा यूनिट स्टेप है, हम फिर मल्टीप्लाई करिए यूनिट स्टेप से, वन में हमारा यूनिट स्टेप ही आएगा। ठीक है ना, तो ये पावर इंटू पावर इक्वल्स टू पावर। ओके, एक अगर कोई यूनिट स्टेप लेते हैं पावर सिग्नल और 0, और कोई यू ऑफ मान लो शिफ्ट कर दिए इसको यहाँ पे। ठीक है ना, शिफ्ट मान लो किए अगर हम 3 से। ओके, तो -3 और फिर -n कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 0 से 3 देगा, मतलब ये पावर सिग्नल ये एनर्जी सिग्नल दी है यहाँ पे। देखिए अगर हम ये पावर को और मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा हमें, कुछ भी नहीं देगा, 0 देगा, नादर एनर्जी नॉट पावर, है ना। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 पावर सिग्नल में भी पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल और आइडेंटिकल 0। ओके ना, जस्टिफाई हमने कर दिया, यूनिट स्टेप स्टेप ये आएगा, जो पावर सिग्नल है हमारा यहाँ यूनिट स्टेप जो शिफ्टेड वर्जन है हमारा, ये एनर्जी सिग्नल आ रहा है, शिफ्ट और 0 दे दिया और इधर माइनस दे दिया, मतलब इन्फिनिटी कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो यहाँ मैटर एनर्जी नॉट पावर। तो यहाँ हम देखने की एनर्जी सिग्नल जिसका फाइनाइट एम्पलीट्यूड हो रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड, द सम ऑफ 2 पर, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल था ये। अच्छा, एक बंदे ने बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आया, कमेंट किया था, ये समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 पावर सिग्नल में भी पावर हो सकता है और एनर्जी हो सकता है और यूनिट और नाइदर एनर्जी नॉट पावर। क्यों, देखिए यूर फैन लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूर फैन से, हमें आउटपुट में क्या बनेगा, यूर फैन ही मिलेगा, यूर फैन मिलेगा। तो ये पावर सिग्नल था, ये पावर सिग्नल था। ओके, और ये भी पावर फैमिली पावर मिला, तो हमने देखा पावर इंटू पावर इक्वल्स टू पावर मिला 1। और देखिए ये हमने एनर्जी सिग्नल लिया, सर ये पावर सिग्नल है हमारा, यूनिट 0 से हमने शिफ्ट कर दिया 2 पे,
ठीक है ना। हमने पावर लिया, पावर सिग्नल मैं यूनिट स्टेप फंक्शन लिया एक्चुअली में, यूनिट स्टेप फंक्शन हमने लिया यहाँ यूएन और मैंने शिफ्ट कर दिया। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या किया बेसिकली ये +2 है तो -2 u ऑफ -n-2 है हमारा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा हमारा आएगा 0 से लेके 2 तक आएगा। ये हमारा फाइनाइट एम्पलीट्यूड, ये हमारा एनर्जी सिग्नल, ये लेकिन पावर ये पावर था। हमने देखा पावर इंटू पावर यहाँ पे एनर्जी सिग्नल आया। ठीक है, देखिए तो हमने लिया ये u ऑफ n, दूसरा मल्टीप्लाई किया हमारा u ऑफ -n +1, तो ये 0 था तो क्या होगा, कुछ ओवरलैप नहीं होगा, नो ओवरलैप, तो हमारा आउटपुट 0 आ जाएगा, कुछ नेदर एनर्जी ना पावर। तो हम बोल सकते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पावर सिग्नल इज अदर पावर सिग्नल अदर एनर्जी और नॉन नेदर एनर्जी नॉन पावर। जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं यूनिट स्टेप लेके। ठीक है ना, यूनिट स्टेप लेके हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो होगा पावर सिग्नल का, ये तो पावर सिग्नल का प्रोडक्ट का हो गया। सिमिलरली एक क्वेश्चन करेंगे हम जो हमें बताएगा कि सम ऑफ टू पावर सिग्नल क्या होगा, सिग्नल में भी पावर और एनर्जी और मैटर एनर्जी नॉट पावर। तो हम बताते हैं एक्चुअली में, देखिए यूटी है, इसको ऐड करेंगे तो हमें ये पावर जो करेगा 2 यूटी हो जाएगा पावर, यूटी है प्लस u ऑफ -t है, फिर हमें 0 दे रहा है। ये 1 है एक्चुअली में, है ना, ये 1 हमारा क्या है, इसका पूरा ये एकदम भी दूर तक जाता है, ये पावर सिग्नल पावर एनर्जी सिग्नल और 0, तो हमें ये दे रहा है। चलो ये पावर सिग्नल है, ये पावर है, लेकिन ये बता नहीं सकते हैं ये कितनी है। ये भी एक्चुअली में जो है ना हमें पावर सिग्नल क्योंकि हमें पता है सिग्नल विच मेंटेन पासिंग वैल्यूज ओवर इट टाइम, इसको पावर सिग्नल फॉर राइट टाइम है, तो ये पावर सिग्नल इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करेगा इसकी u ऑफ n u ऑफ t, अच्छा ये बात है, ये सिग्नल को हम ऐड करते हैं इस सेगमेंट के साथ, मतलब ये तो u ऑफ t था तो माइनस u ऑफ t हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा ये शिफ्टिंग के बाद माइनस u ऑफ t माइनस 1 अगर ये 1 तो इस अगर सिग्नल को प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जहाँ तक 1 तक था कैंसिल हो जाएगा इसके बीच में, तो क्या आएगा हमें इतना, तो इतना जो हमारा एनर्जी सिग्नल तो u t प्लस माइनस u ऑफ t माइनस 1 अगर देखें तो एनर्जी सिग्नल हमारा बोल सकते हैं। रैम सिग्नल नाइदर एनर्जी सिग्नल होता है नॉट पावर सिग्नल होता है, बिकॉज एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड भी इन्फिनिटी हो जाता है। अगर हम रैम सिग्नल की बात करें, रैम सिग्नल की बात करते हैं, अगर हम रैम सिग्नल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो जैसे t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा एम्पलीट्यूड ऐसे टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए नाइदर एनर्जी नॉट पावर। अगर ये 0 हो जाता तो ये हमारा एनर्जी सिग्नल होता है, पावर सिग्नल। तो ये आज के लिए सफिशिएंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एनालिसिस करेंगे डिस्क्रीट टाइप ऑफ सिग्नल्स का, क्योंकि हमें जितनी दिखाएगा सब टाइम डोमेन था एक्चुअली में, तो डिस्क्रीट देख लेंगे।